afternoon all. Good afternoon all. चलो, do you all remember what we had done yesterday? कल क्या किया याद है? मोक्षी ध्यान आपो बेटा. આગળ આવો નહીં આવો ને નહીં નહીં તો તું અહીંયા ध्यान तो આપ પછી. ઓકે હવે do you remember AS1? चलो एक क्विकली एक बार बताओ AS1 what was the name? come on. Disclosure of accounting policies. याद है? Yeah, what do you mean by accounting policies? Specific accounting principles plus methods of applying those principles. You remember this? Okay. Is there any single list of accounting policies? No, there is no single list which can be applied in all circumstances. Agreed? Okay. उसके बाद I can say second part, disclosure. Where to disclose? Notes to account. Which policies? All significant accounting policies. Why to disclose? Better understanding, comparison, decision making, statutory requirements. Correct? Okay. Then fundamental 9 points to be considered while drafting accounting policy. Primary, secondary. Primary में क्या था? True and fair view होना चाहिए. True and fair view के लिए conservatism. Secondary, conservatism, that is prudence. Second, substance over form and materiality. ये तीन consider करना चाहिए. फिर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन 3 थे. कौन सा? कंसिस्टेंसी. याद है? ये तीनों फॉलो किया तो डिस्क्लोज नहीं करने का, बिकॉज इट इज असम्पशन एंड इट इज इम्प्लाइड असम्पशन. बट फॉलो नहीं किया तो एज पर AS1 के हिसाब से डिस्क्लोज करना पड़ेगा. याद है? ओके. कैन वी चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसीज? या Can we change accounting policies? Yes, under 3 circumstances. Circumstances number 1 क्या था? Required by statute. Statute मतलब law. Government change किया, change कर सकते हैं. Required by accounting standards. ICI बोला, change कर सकते हैं. Third, better presentation and preparation of financial statement. याद है? बोलो. Accounting policy change कर सकते हैं. It is given under AS5. करेक्ट. बट पॉलिसी चेंज किया तो क्या करना पड़ेगा? नहीं. इफ इट हैज मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन इट शुड बी डिस्क्लोज, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. अग्रीड? पक्का? चलो उसके बाद क्या डिस्क्लोज करने का? द अमाउंट बाय विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड. If it is ascertainable, and if it is not ascertainable, then facts should be indicated. याद आया? पक्का? That's it. This was our AS1. अभी मेरे को बोलो हमने कल AS1 में क्या क्या किया था? क्वेश्चन 1 किया था कि नहीं? 7 भी किया है ना कल? 1 and 7 ही हुआ है ना? चलो, we will complete this standard in next half an hour, 45 minutes. And then we will start with accounting standard 2. AS2. Rather question number 2. Read करो. आराम से क्वेश्चन पढ़ना, आंसर नहीं पढ़ना. स्टार्ट करो. In the books of Messrs A Limited, closing inventory on 31st March 2015 was valued at 1,63,000 on the basis of which method? So पहले ये लोग FIFO मेथड से वैल्यूएशन कर रहे थे, कॉस्ट फॉर्मूला फॉलो कर रहे थे.
Now company decided to change from FIFO method to weighted average method. Correct? Yeah. FIFO to weighted average method for ascertaining the cost of inventory for the year 14-15. On the basis of weighted average method, closing stock on 31st March 15 was 147. बोलो FIFO method से कितना था stock? 1,63,000 and weighted average से 1,47,000. Do you agree with this? तो मुझे सोच समझ के बोलना, ओल्ड मेथड कौन सा था? सो स्टॉक ज्यादा था, स्टॉक ज्यादा था ना 163. अरे मतलब स्टॉक मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक ज्यादा था 163 एंड एज पर वेटेड एवरेज मेथड स्टॉक का वैल्यूएशन कम हुआ है 147. दोनों केस में एनआरवी कितना है 190. सो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर करेंगे तो दोनों केस में एनआरवी तो हायर ही है. सो स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू करना पड़ेगा. किस पे वैल्यू करेंगे बोलो एज पर न्यू मेथड 147. क्या चेंज हो रहा है? चेंज क्या हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है. सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी. डू यू रिमेंबर दिस? आंसर दो इधर, कम ऑन यार. इट इज बेस्ड ऑन चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी. नाउ हाउ टू राइट द आंसर? क्या लिखने का? हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट? नहीं, पहले नाम एंड नंबर एज पर चेंजेस इन सॉरी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. बराबर है. इफ यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट ट्रिगर होगा? हाँ, सो लिखने का इफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज चेंज्ड and it has material effect on the financial statement, then disclosure is required as per AS1. Now क्या disclose करने का? The amount by which financial statement is affected, if it is ascertainable, and if it is not ascertainable, fact should be indicated. ये पूरा changes in accounting policy में जो disclosure का मैंने provision लिखवाया वो लिख देने का. फिर थर्ड पैराग्राफ मतलब थर्ड पॉइंट. In the given case, fact of the case, Messrs A Limited has decided to value its inventory at cost or NRV, whichever is lower. In both the cases, NRV is more, so stock will be valued at cost. However, for determining cost, earlier they were following FIFO method. So as per old method, value of stock was 1,63,000, and as now they have decided to change to weighted average method. So the stock is valued at 1,47,000, which will result into decrease in the value of stock, which will decrease in the value of net asset of the organization, and which will decrease net profit of the organization. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम होगा, सो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा कि नेट प्रॉफिट कम होगा? कम होगा. सो नेट प्रॉफिट कम होगा, वो इम्पैक्ट बता देने का कि 16,000 से नेट प्रॉफिट कम होगा. एंड सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का एसेट साइड पे आता है, तो एसेट भी 16,000 से कम होगा. दैट इज द वे यू शुड प्रेजेंट योर आंसर. ये क्लियर? हाँ, अभी यहाँ पे पढ़ते हैं. चलो क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन समझा आपको? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी का क्वेश्चन रीड करो एक बार अच्छे से. यहाँ तक है ना प्रोविजन है, चेक कर. फिर यहाँ से फैक्ट चालू हो रहा है. समझाइए पक्का? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2. वी विल गो फॉर क्वेश्चन 3. आप लोग आंसर नहीं पढ़ना, रीड क्वेश्चन नंबर 3.
सेम कंपनी, नहीं एक सेकेंड, देन व्हाई दे विल चेंज द मेथड? If they are changing the method, means they want to continue their business, no? If company is going into liquidation, then the stock will be valued at NRV only, then there is no method required only. NRV would be the same, agreed, but if they are going into liquidation, why they will change the method? These methods are for valuation or cost determination? They are for cost determination. Stock anyways is not going to be valued at cost, it will be valued at NRV only. Then why they will value or they will change the method? Correct? Yeah. Question number 3. Which concept will trigger? Substance over form. Agreed? X Limited sold its building to Mini Limited for 60 lakhs. 60 lakhs क्या है? बराबर? कभी सेल किया? 30th September 2010 एंड गिव पोजीशन भी दे दिया. लाइक मैं एक्स लिमिटेड है, मैंने 30th सितंबर को इनको एक बिल्डिंग सेल किया है, पोजीशन दे दिया, बट लीगल फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशंस आर पेंडिंग. करेक्ट? ड्यू टू दिस कंपनी, द कंपनी, विच कंपनी? X Limited has not recorded the sale and has shown the amount received as an advance. Book value of building sold was 25 lakh on 31st March 2011. Do you agree with the treatment? बोलो, मेरे को सोच समझ के बोलो. मैंने बिल्डिंग बेचा है, मैंने बिल्डिंग सेल किया. कितने का बिल्डिंग था? 25 lakhs का. बुक में बेचा कितने में? 60 lakhs में सेल किया. एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट. 35 lakhs का प्रॉफिट है, सो पीएनएल अकाउंट ये एंट्री होना चाहिए. अकाउंटेंट ने क्या किया? रादर कंपनी ने क्या बोला कि नहीं सेल नहीं रिकॉर्ड करने का, हम बैलेंस शीट में हमारा बिल्डिंग बताएंगे और जो पैसा मिला है ना 60 lakhs उसको हम एडवांस बताएंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस अकाउंट. बोलो, ट्रीटमेंट करेक्ट है कि ट्रीटमेंट रॉन्ग है? रॉन्ग है. ऑन व्हाट बेसिस? Substance over form. Substance means reality or fact of the transaction is more important than the legality of the transaction. Legally we are not the owner, but fact if you will check, then we are the owner. Buyer is the owner in simple language. Agreed? So क्या करना चाहिए X Limited को? क्या करना चाहिए? 35 lakhs का प्रॉफिट पीएनएल में बुक करना चाहिए एंड बिल्डिंग में से 25 लाख रुपया निकाल देना चाहिए. मतलब बिल्डिंग शुड बी डी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट. रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड करने का, डी रिकॉग्नाइज मतलब बुक से निकाल देने का. करेक्ट? चलो आगे पढ़ो. एज पर AS1 disclosure of accounting policies, the main consideration in selection of accounting policy is the presentation of true and fair view of the state of affairs and the performance of the enterprise. To ensure true and fair view, principle of prudence, substance over form and materiality should be considered. देखो पूरा प्रोविजन लिखा बोलो, याद आया? ये फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड का प्रोविजन है. In this case, economic reality and substance of the transaction is that rights and beneficial interest in the property has been transferred, although legal title has not been transferred. लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं किया,
correct? Hence, X Limited in its financial statement for the year ended 31st March 2011 should record what and recognize what of 35 lakhs in its P&L statement, and building should be de-recognized from the balance sheet of X Limited. Therefore, treatment given by the company is not correct. Clear? पक्का? Question number 4 करना है. Interesting question. You are required to comment on the following cases as per the provision of AS1 disclosure of accounting policy. आंसर नहीं पढ़ना. पहले एक काम करते हैं, चारों केस तुम पढ़ लो एक बार, आंसर सोच के रखो, फिर हम डिस्कस करते हैं. दैट वुड बी बेटर. व्हाट से? करेक्ट? प्लीज रीड दिस. B Limited has not complied with AS2. इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो नहीं किया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. और क्या बोल रहा है मालूम है? मैंने AS2 फॉलो नहीं किया, बट मैंने डिस्क्लोज कर दिया है कि मैंने AS2 फॉलो नहीं किया, तो चलेगा. Disclosure of anything is not the remedy of particular item not followed, particular principle not followed. It is not a remedy of breaking the law. तो मर्डर कर दिया और बोलेगा मैं तो बोल रहा हूँ ना मैंने किया है, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ, तो क्या छोड़ देगा तुमको कोई? नहीं. इट इज नॉट अ रेमेडी. डू यू अग्री विद दिस? सो B Limited has not complied with AS2 valuation of inventory and the same is disclosed in notes to accounts. उसने फॉलो नहीं किया, वो नोट्स में उसने डिस्क्लोज भी किया. Management is of the view that the financial statement gives true and fair view as non-compliance with AS2 is disclosed. Bolo, view of management is incorrect in this scenario. Read answer. As per AS1, disclosure of accounting policy. Disclosure of accounting policy is not a remedy. It's not a remedy for wrong or inappropriate treatment in accounting. In the given case, the financial statement does not give true and fair view as they are not in compliance with AS2. Do you agree with this? Clear? C Limited sold its office building for rupees bolo 10 lakhs on 1st March 2023. The buyer has paid the full amount and taken possession of the building. The buyer has paid the full amount and taken possession of the building. The book value of building was 4 lakhs on 31st March 2023. Documentation and legal formalities are pending. The company has not recorded the sale and the amount received is shown as advance. बोलो ट्रू के फॉल्स? मतलब ये ट्रीटमेंट जो करेक्ट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है. क्या करना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, C Limited has to dispose of assets from his books of account. मीन्स उसको एसेट डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए एंड प्रॉफिट और लॉस P&L में डालना चाहिए. अग्रीड? आंसर पढ़ लो. Next, D Limited has prepared its account on बोलो and same is एक कैश अकाउंटिंग सिस्टम अलाउड है कि अलाउड नहीं?
अलाउड है, बट डिस्क्लोज करना पड़ेगा because you are not following accrual accounting system. Accrual is our fundamental accounting assumption. If you are not following that, then disclosure is required. So if you are following cash accounting system, no problem, but disclose the fact. पढ़ो. Accrual is what? Fundamental accounting assumption, and if it is not followed by the company, the fact should be disclosed under accounting standard 1. Hence the company should disclose the fact that cash basis of accounting has been followed. ये समझा? G Limited disclosed significant accounting policies adopted in preparation of financial statement in director's report. कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए? नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए ना. पढ़ो 4th पॉइंट. The practice followed by the company is not correct. It should be disclosed as a part of financial statement, and director's report is not a part of financial statement. बोलो, नोट्स टू अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है कि नहीं है? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? पीएनएल, पीएनएल स्टेटमेंट. हम लोग तो पहले बैलेंस शीट बताते हैं. बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट्स. समझेगा? दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. रीड दिस क्वेश्चन. 2 बार पढ़ना. इससे सिमिलर क्वेश्चन भी आ सकता है. यू नेवर नो, मॉडिफाई करके कुछ दे देंगे. ओके, आई विल रीड, पे अटेंशन. ये पूरे चैप्टर में कैसा है? 5th and 6th 2 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आप लोग को पढ़ के समझेगा नहीं, पूछ के आ रहा है. 5th and 6th. सो लेट अस क्रैक दिस टुगेदर. एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ, बोलो, and is undergoing what? समझा कि नहीं समझा? फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या देते हैं लोग? क्या सर्विस रहता है? लोन लेने का, लोन देने का, कंसल्टेंसी सर्विसेज देंगे फाइनेंस से रिलेटेड. करेक्ट? टाइट लिक्विडिटी पोजीशन. सिंस मोस्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी are blocked in various claims and petition in a special court. बहुत सारे एसेट्स उसके स्पेशल कोर्ट में क्या हो गए? क्यों? क्योंकि लोन लिए रहेंगे ना, तो एसेट के सामने लोन लिए रहेंगे, फिर लोन टाइम पे पे नहीं कर पाया है तो एसेट ब्लॉक हो गए. समझा? एबीसी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हैज एक्सेप्टेड व्हाट? कम ऑन. मतलब दूसरे कंपनी से डिपॉजिट्स लिया है, दूसरे कंपनी से लोन लिए हैं, एंड इट इज मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स टू सेटल द ड्यूज. समझा कि नहीं समझा? देयर वर क्लेम्स एट वेरीड रेट ऑफ इंटरेस्ट. देयर वर क्लेम्स एट वेरीड रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम लेंडर्स. समझ रहा है? फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ आईसीडीज टू द डेट ऑफ रीपेमेंट. ड्यू डेट ऑफ आईसीडीज
to the date of repayment. The company has provided what? Interest as per the terms of the contract till the due date, and a note for non-provision of interest from the due date to the date of repayment was mentioned in financial statements. ये समझा कि नहीं समझा? कौन से डेट से कौन से डेट का? ड्यू डेट टू द डेट ऑफ सेटलमेंट का इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया, उसको नोट्स में नीचे डिस्क्लोज कर दिया. ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों ऐसा किया? बोलता है ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टनिटीज एग्जिस्टिंग रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन एट प्रेजेंट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कंपनी कंसिडर्स दैट दीज क्लेम्स आर इन नेचर ऑफ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेजेस डेट. कंपनी बोल रहा है ये अनसर्टन क्लेम्स हैं, मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जो क्लेम हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एज अवर लायबिलिटी. The same has been disclosed by way of note in the accounts instead of making a provision in P&L account. State whether the treatment done by the company is correct or not correct. Question समझा कि नहीं समझा? पक्का? आंसर पढ़ लो अभी. यहाँ से पढ़ो. एस पर ES1 ये क्या है? और यहाँ से एज पर ES1 ये दो कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहे हैं कि अक्रूवल के हिसाब से ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए एंड प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म के हिसाब से भी ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए. कौन से पीरियड का इंटरेस्ट? फ्रॉम ड्यू डेट टू द डेट ऑफ सेटलमेंट. दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज ओवर ड्यू इंटरेस्ट. डू यू अग्री विथ दिस? पढ़ लो एक बार. पढ़ा? डन? कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन 5. बट याद रहेगा दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? ओवर ड्यू इंटरेस्ट, मतलब ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ रीपेमेंट तक का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए. कैन यू रिमेंबर दिस? या अभी इधर आ जाओ. अभी ये क्वेश्चन भी आपको समझेगा नहीं, बट एक बार आप पहले रीड करेगा. थिंक अबाउट इट इफ यू कैन अंडरस्टैंड. आंसर नहीं पढ़ना और मेरे को बोलना कि कॉन्सेप्ट कौन सा है.
हैज मेड अ राइट इश्यू, सुना है राइट इश्यू, of shares in 2022. In the offer document to its members, it had projected a surplus of 40 crores during the accounting year ending 31st March 2022. क्या प्रोजेक्ट किया इसने? राइट इश्यू लाए तभी क्या प्रोजेक्ट किया कि 40 करोड़ का प्रॉफिट होगा. अभी ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर, एक्चुअल रिजल्ट आया, prepared on the hitherto followed accounting policies and presented for perusal of board of directors showed a deficit of 10 crores. कुछ समझा? क्या लेके आए थे कंपनी वाले? राइट इश्यू. उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स, ऑफर डॉक्यूमेंट शेयर होल्डर्स को दिया, उसमें 40 करोड़ का प्रॉफिट प्रोजेक्ट किया था. और फिर ड्राफ्ट रिजल्ट, मतलब एक्चुअली रिजल्ट जब ये आया तो रफली कैलकुलेट किया तो 10 करोड़ का लॉस आ रहा है. ये क्या होता है? द ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ऑन द हिथरटो, ये क्या होता है? हिथरटो इज नॉट अ मेथड. हिथरटो मतलब अब तक के जो पॉलिसीज हम फॉलो कर रहे थे, अब तक till now whichever policies we were following, उसके कारण 10 करोड़ का डेफिसिट आया. करेक्ट? द बोर्ड इन कंसल्टेशन विथ मैनेजिंग डायरेक्टर, अभी जब राइट इश्यू लेके आए तभी हमने 40 करोड़ का प्रोजेक्शन प्रॉफिट दिया था. अभी जो लॉस दिख रहा है बुक में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं कि हम क्या करें ये प्रॉफिट बताने के लिए. तो बोलते हैं दे हैव डिसाइडेड टू वैल्यू योर एंड इन्वेंट्री एट वर्क्स कॉस्ट. व्हाट डू यू मीन बाय वर्क्स कॉस्ट? फैक्ट्री कॉस्ट. वर्क्स मतलब फैक्ट्री. बोलते हैं हमने डिसाइड किया है कि ईयर एंड का इन्वेंट्री हम वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे करेंगे, इंस्टेड ऑफ हिथरटो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट. पहले मैं इन्वेंट्री प्राइम कॉस्ट पे करता था, अभी मैं इन्वेंट्री वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट पे कर रहा हूँ. प्राइम कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. वर्क्स कॉस्ट क्या होता है? तो वर्क्स कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री में बहुत सारा खर्चा किया रहेगा हमने, उसका डेप्रीशिएशन और भी फैक्ट्री रेंट, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है. तो इसके कारण क्या हो रहा है? पहले हम वर्क्स कॉस्ट, पहले हम प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूएशन कर रहे थे इन्वेंट्री, अभी फैक्ट्री कॉस्ट पे करेंगे वर्क्स कॉस्ट पे. तो हमारा इन्वेंट्री बढ़ गया, पहले 30 करोड़ था, अभी इन्वेंट्री 50 करोड़ हो गया. तो मेरा 20 करोड़ का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, तो 20 करोड़ से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. ये कौन रेकमेंड कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ में ये कंसल्टेशन कर रहे हैं कि आप उन मेथड चेंज कर देते हैं. किसका? स्टॉक वैल्यूएशन. तो उसके कारण बुक में प्रॉफिट दिखने का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ये खर्चा तो किया ही है. समझाइए. तो क्या चेंज हो रहा है? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है. डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए. सेकेंड, they have decided to provide for permanent diminution in the value of investment. सुना है? इन्वेस्टमेंट सुना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे वैल्यू होता है? और अनलेस द रिडक्शन इज, हाँ मतलब अगर रिडक्शन अदर देन टेम्पररी रहेगा तो लॉस बुक करने का कि नहीं करने का? बोलो. करने का. बराबर है. ये लोग ने वर्ड दिया है परमानेंट.
बट दैट इज रॉन्ग लैंग्वेज, बट लैंग्वेज दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोवाइड फॉर व्हाट, परमानेंट डिमिनिशन, मतलब अदर देन टेम्पररी रिडक्शन of long-term investment valuation which had taken place over past and the amount of loss is 10 करोड़। बोलता है हमारे पास जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें परमानेंट रिडक्शन हुआ है, मतलब अदर देन टेम्पररी रिडक्शन हुआ है 10 करोड़ का, जो हमने आज तक प्रोवाइड नहीं किया है, हम करंट ईयर में प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो 10 करोड़ का लॉस में प्रोवाइड करेगा। समझा? एज चीफ अकाउंटेंट हम कौन है? डायरेक्टर भी नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी नहीं है, वो लोग ने तो ये डिसाइड किया है ये करना है, अभी अपने को बता रहे हैं करना है, हम कौन है? ऑफ द कंपनी यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट व्हाट, नोट्स टू अकाउंट्स ड्राफ्ट करके दो जिसमें हम ये दोनों चेंज हुआ है वो हम डिस्क्लोज करता है। तो क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन कि ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पॉलिसी चेंज हो रहा है तो उसको डिस्क्लोज कैसे करो। किधर डिस्क्लोज करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स, तो वो भी उसने बोला है नोट्स में डिस्क्लोज करना है, बट कैसे करेंगे उस पर क्वेश्चन है। बराबर है? क्या बोलेंगे, बोलो आंसर कैसे लिखने का? एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी अलाउड है। As per AS1, any change in accounting policy which has what? Come on. In the current period or which is reasonably expected to have material effect in the later period should be. बराबर है? आगे, in the case of changes in accounting policy which has material effect in the current period and the amount by which any item in the financial statement is affected by such change should also be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable wholly or in part, the fact should be indicated. समझा कि नहीं समझा? Accordingly, the notes to account should properly disclose the change and its effect. Clear? क्या बताएंगे नोट्स में? देख लो, पढ़ो फर्स्ट एंड सेकंड। During the year, inventory has been valued at, come on, against the practice of valuing inventory it at as it was practiced till last year. आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ो। As a result of this change, year-end inventory has been valued at 50 crores and profit of the company will be increased by 20 crores. Clear? The company, the company has decided to provide 10 crore rupees for the permanent diminution in the value of investment which has taken place over the period of past 5 years. And the provision so made has reduced the profit disclosed in the accounts by 10 crore. समझा कि नहीं समझा? पक्का? क्या कंप्लीट किया हमने? 6th भी हो गया, 7th भी हो गया। दिस इज द एंड ऑफ AS1। सच बोलो, ये क्वेश्चन समझे क्या आपको? Shall I proceed? AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। AS1 क्या था? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग, इट वाज अ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड।
AS2 valuation of inventory is a measurement standard. कौन सा स्टैंडर्ड है ये? मेजरमेंट स्टैंडर्ड. We will write areas to be covered. साथ में लिख. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बुक में ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखने हैं सारे. AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग था, वो 8 चैप्टर. ठीक है 8 चैप्टर्स जो है ना प्रैक्टिकल चैप्टर्स, वो उसमें लिखना, बाकी सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखो. करेक्ट. अभी वो बुक लाना भी नहीं इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि अभी एक भी प्रैक्टिकल हम अर्ली बर्ड में नहीं करेंगे. कौन है? या चलेगा, बट फिर कैसा है, आपको सिलेबस में एक ही है, बट फिर बहुत सारे बुक्स हो जाएंगे. यू विल नॉट हैव बाइफर्केशन. पोस्ट रिजल्ट में हम 2 बुक देंगे, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2. तो वॉल्यूम 1 के चैप्टर अलग लिखें तो बेटर है ना, वॉल्यूम 2 अलग लिखें तो बेटर है. आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक लिखो, नो प्रॉब्लम. मिनिमम 4 बुक लगेंगे एक में लिखो. 4 नोटबुक्स ऑफ 200 पेजेस. स्टार्ट करें. मीनिंग ऑफ इन्वेंटरीज. बरोबर है. वैल्यूएशन प्रिंसिपल for finished goods.
क्लियर, ये कवरेज है, स्टार्ट करें। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री? बस इतना ही। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक? रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। ओके, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? ओके, फिनिश्ड गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड सेम, तो नाम क्यों अलग है? तो फिनिश्ड गुड्स इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल। फिनिश्ड मतलब क्या? खत्म हो गया ना, अभी काम नहीं करना है ना उस पर, फिर क्या करना है? तो फिनिश गुड्स भी वैसे ही रहेगा ना। क्यों, कोई ऐसा मतलब आपके हिसाब से ऐसा होता है कभी? मतलब बिजनेसमैन को कोई बोलेगा ये गुड्स हमें बेचना है, हमें परचेज करना है, आप बोलेगा नहीं ये तो मैं नहीं बेचेगा? यस मैम। Has been sold, then it is not there with us, no? And if it is not there with us, then it is not a part of our inventory. How it will be valued then? Goods which are there at store. So see, let us take one example. If we are a shirt manufacturer, we are purchasing raw material, we are converting that raw material into finished goods, correct? And means shirt ban gaye. Now that shirts will be there in store for sale. We have showroom also. ओके, सारे स्टोर में नहीं रहेंगे, मतलब यू मीन टू से जो शर्ट हमने फिनिश्ड किए हैं, हमने बनाए हैं और उसको हमने स्टोर में रख दिया, तो वो स्टॉक इन ट्रेड हो गया। और जो शर्ट अभी भी गोडाउन में पड़े हैं वो फिनिश्ड गुड्स हैं। नहीं करते हैं हम लोग में, तो करते हैं मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। क्यों? ट्रेडिंग, रॉ मटेरियल परचेज किया, कन्वर्ट करते हैं उसको, हम लोग फिनिश करके बेच देते हैं। ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं? हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? चलो, आई विल गो विथ योर लाइन, आप जो बोल रहे हो। देर आर बेसिकली नाउ फोर टाइप्स ऑफ स्टॉक। वन इज रॉ मटेरियल, लाइक वी आर शर्ट मैन्युफैक्चरर, cloth is our raw material. We will convert that cloth into shirts. Cloth is my raw material. At the end of the year, if shirt is incomplete, then it is WIP, semi-finished goods. And if at the end of the year, if shirts are finished, then they are called as finished goods. Along with that manufacturing activity, we have one showroom also, store also, correct? Online store, offline store. There we sell those shirts. Along with those shirts, we're also selling ties, cufflinks, pipings, belts, wallets. Concentrate on concept, not on the product. We are selling, along with shirts, we are selling multiple other products. जो आप पीटर इंग्लैंड में जाएंगे आपको दिखेगा,
प्रोवोग में जाओ मिलेगा, करेक्ट, एलपी में जाओ मिलेगा, बट हम सिर्फ शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट में हम ट्रेड करते हैं. वी डोंट मैन्युफैक्चर टाइज, टाई पिन्स, आई कैन से कफलिंग्स, बेल्ट, वॉलेट्स, सॉक्स, ये सब दिखेगा आपको उधर. हम वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, हम उसमें ट्रेड करते हैं, सिर्फ बाय करते हैं, सेल करते हैं, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, वो हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड है. तो आपने जो बोला कि ट्रेडर रहेगा तो वो स्टॉक को क्या बोलेगा, स्टॉक इन ट्रेड. मैन्युफैक्चरर रहेगा तो 3 स्टॉक रहेंगे, बिजनेसमैन ट्रेडर भी हो सकता है, बिजनेसमैन मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, वो दोनों भी हो सकता है. तो businessman can have 4 types of stock. Manufacturer will have 3 types of stock. Trader will have 1 type of stock. तुमको समझता है क्या बात कर रहा है या? तो किसका वैल्यूएशन करना है, सिर्फ फिनिश गुड सबका. अभी तो एरियाज टू बी कवर्ड में बात किया कि फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी, स्टॉक इन ट्रेड का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, रॉ मटेरियल वैल्यूएशन कैसे करेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वैल्यूएशन कैसे करेंगे. कुछ समझ रहा है या? बड़ा स्टैंडर्ड है, एक लेक्चर में नहीं होता. आज थियरी होएगा सिर्फ. कितना है, 1.5 घंटा है अपने पास, 1.5 पौने 2 घंटे. नेक्स्ट लेक्चर, पूरा लेक्चर इसके क्वेश्चंस होंगे. अगर कुछ थियरी बच गया तो वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर. प्रैक्टिकल है, सॉल्व करना है सर. प्रिंटेड हार्डली 1-2 आंसर प्रिंटेड रहेगा, 15 क्वेश्चन डाल के दिया है, कंपाइलर कवर्ड है, सब कवर्ड है. तुमको समझता है क्या बात करते हैं मैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री, बोलो. इन्वेंट्रीज आर inventories are assets. Held. बोलो, ये इन्वेंट्री हम क्यों रखते हैं हमारे पास, फॉर, बोलो. Inventories are assets held for sale in ordinary course of business. बोलो, ये फर्नीचर हमारा इन्वेंट्री है कि नहीं, ये हमारे पास है, इसको बेच सकते हैं कि नहीं, बेच सकते हैं कि नहीं, बट वो बेचने का हमारा बिजनेस है क्या, इट इज नॉट सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. वो वर्ड, एक एक वर्ड का मीनिंग है उधर. इन्वेंट्रीज आर एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. मेरा बिजनेस होना चाहिए, ऑर्डिनरीली मैं सेल करना चाहिए वो आइटम में. फर्नीचर डीलर रहेगा मैं तो ये फर्नीचर बेचने बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, और वो मेरा बिजनेस है तो ये मेरे लिए इन्वेंट्री. समझा? एग्जाम्पल बोलो. फिनिश्ड गुड्स, पागल बावरी हो गई है.
ब्रेक चाहिए बेटा? आस्था बोलेगी, हाँ मेरे को पता है ना. इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. इसमें आएगा फिनिश्ड गुड्स. क्या लिखा? स्टॉक इन ट्रेड. ये समझा? और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. क्या होता है? इन्वेंट्रीज आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. परफेक्ट. और in the form of materials or supplies example. Raw material, stores and spares, stores and spares, consumables, etc. इधर तक थोड़ा समझा क्या? क्लियर? पक्का? ये क्या कंप्लीट किया? एक बार रिपीट करो ना मीनिंग. इन्वेंट्रीज आर assets held for sale in the ordinary course of business or in the process of production or in the form of material or supplies to be consumed in the production process. याद रहेगा? पक्का? मुनील? ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स मतलब
वाई वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड? बोलो क्यों चाहिए वैल्यूएशन? ओके मेरे को ये बोलो, अगर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन रॉन्ग कर दिया तो क्या होगा? परफेक्ट, दो इफेक्ट जो आता है उधर अफेक्ट करेगा। क्या रॉन्ग हो जाएगा? प्रॉफिट और लॉस रॉन्ग हो जाएगा। मतलब टू गेट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस वी हैव टू वैल्यू इन्वेंट्रीज प्रॉपरली। सेकेंड इफेक्ट किधर जाता है? तो टू गेट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन वी हैव टू वैल्यू इन्वेंट्री प्रॉपरली। बस ये दो रीजन है। अग्रीड? लिख दो, टू गेट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। बोलो क्लियर एवरीबॉडी? क्या लिखा? व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेबिलिटी? एप्लीकेबिलिटी का मीनिंग क्या? बोलो। वेयर इट इज यूज? नो। AS2 सी, कोई कोई स्टैंडर्ड में पॉजिटिव एप्लीकेबिलिटी रहेगा, कोई कोई स्टैंडर्ड में नेगेटिव एप्लीकेबिलिटी रहेगा। पॉजिटिव एप्लीकेबिलिटी मीन्स द स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू दीज आइटम्स, and negative applicability means this standard is not applicable to these items. Majority standard में negative applicability है, likewise AS2 में भी negative applicability है कि this standard is not applicable to. करेक्ट? ये समझा? This accounting standard is not applicable to. This AS is not applicable to what? Financial instruments. Financial instruments को applicable नहीं है। मतलब shares, debentures which are held as a stock in trade. Shares, debenture held as an investment AS13 लग जाएगा। Held as a stock in trade उसको AS2 नहीं लगेगा। उसके लिए इंड एस है, इंड एस 107 एंड इंड एस 109। ये 1079 बोला मतलब IFRS 7 IFRS 9। तो वहां पे हम सीखेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पहले एएस में भी तीन स्टैंडर्ड थे, 30, 31, 32। एएस 30, 31, 32 किसके लिए थे पता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए। वो इश्यू किए आईसीएआई ने, नोटिफाई नहीं हुआ। नोटिफाई नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो टाइम पे फिर वो लोग इंड एस की ओर जा रहे थे,
तो वो इंडेस की ओर जा रहे थे ना, तो फिर ये नोटिफाई नहीं किया, सीधा ये 3 स्टैंडर्ड इंडेस में डाल दिया। समझ रहा है या? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, debentures held as stock in trade. इसको क्या एप्लीकेबल नहीं है? एस टू एप्लीकेबल नहीं है। क्या लिखा? WIP ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको A7 एप्लीकेबल है। तो ये AS2 में कवर नहीं होगा। WIP ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। एक एग्जांपल देता हूँ, हम लॉयर हैं, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कोर्ट में एक केस चालू है, 5 साल हो गए, अभी भी केस चालू है। कैन आई से फॉर अस इट इज WIP, बट WIP ऑफ गुड्स के WIP ऑफ सर्विसेज? तो सर्विस इंडस्ट्री का WIP AS2 में वैल्यू नहीं होगा। यू कैन नॉट से कॉस्ट फॉर NRV विच एवर इज लोअर। कोर्ट में केस चालू है, वैल्यूएशन कैसे AS2 के हिसाब से कर पाएंगे? सो दैट WIP इज नॉट कवर्ड अंडर AS2। उसका इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, अकॉर्डिंगली वो वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर? क्या डाउट है? पूछ। क्या पूछ रही थी? ऐसे लेक्चर के बीच में और भी बातें करते हैं। सुनो इधर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस, क्या लिखा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस लाइव स्टॉक, लिखते जाओ, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, लाइव स्टॉक, मिनरल ऑयल्स, ये सबको भी AS2 एप्लीकेबल नहीं है। इंडस्ट्री बेसिस पे दे आर वैल्यूइंग दिस। लाइव स्टॉक सुना है? काउस, बफेलोज, अमूल, अमूल वाले के पास काउस एंड बफेलोज रहेंगे, उनका लाइव स्टॉक है। इट इज नॉट वैल्यूड एज पर AS2 बॉस। कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर नहीं कर सकते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। काउस रिप्रोडक्शन से काउस आते हैं, तो उसका कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, यू कैन नॉट वैल्यू इट एट कॉस्ट। उसका इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, अकॉर्डिंगली दे वैल्यू। एज फार एज Ind AS इज कंसर्न, Ind AS में Ind AS 41 टॉक्स अबाउट दिस। एग्रीकल्चर इधर स्टैंडर्ड नहीं एग्रीकल्चर का, उधर है। एनीवे समझाइए आपको। वी आर डन विथ व्हाट? एप्लीकेबिलिटी। 3 पॉइंट क्लियर?
स्टार्ट करो मेन पार्ट. What do you mean by principle? Rule. वैल्यूएशन का रूल क्या है? फॉर finished goods, WIP, stock interval. कैसे वैल्यूएशन करेंगे? वेरी सिंपल. कॉस्ट और NRV whichever is lower. क्लियर. एक नोट लिखो. If items are similar in nature, if items are similar in nature, then valuation should be done on group or global basis. However, if items are distinct in nature, then valuation should be done on item by item basis. If items are distinct in nature, then valuation should be done on item by item basis. सच बोलो, ये समझा के एवरीबॉडी. ये तो सबको आता रहेगा यार. कॉस्ट और NRV whichever is lower, manageable. Now my next point is, क्या डाउट है इधर? ग्लोबल. अरे सारे आइटम सेम है तो मैं सबका कॉस्ट एंड सबका NRV whichever is lower करेगा. मेरे इन्वेंट्री में सारे आइटम्स अलग अलग हैं तो मैं इंडिविजुअली सबका कॉस्ट और NRV whichever is lower करेगा. समझा कि नहीं समझा? ये क्लियर. नाउ नेक्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. We learned how to value inventory, cost or NRV whichever is lower. How to determine cost? How to determine cost? कॉस्ट में क्या क्या आएगा? कॉस्ट फाइंड करने के बाद कौन सा मेथड से वैल्यूएशन करेंगे वो बात है. मतलब कौन सा मेथड फॉलो करेंगे उसका डिस्कशन बाद में होएगा. पहले कॉस्ट इंक्लूड्स व्हाट, कॉस्ट एक्सक्लूड्स व्हाट. If we are a trader,
देन वैल्यूएशन इज वेरी सिंपल. जो भी मैंने कॉस्ट परचेस किया है गुड्स, वो मेरा कॉस्ट रहेगा. बट इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, देन वैल्यूएशन विल बी द टास्क. करेक्ट? Let us say we are manufacturer. How to value inventory in this scenario? We will value inventory at cost or market price, that is NRV, whichever is lower. Cost includes what? Come on, first. Purchase price. We can say as a businessman, as a manufacturer, what we will purchase? Raw material we will purchase. Do you agree with this? यहाँ तक क्लियर? हाँ. नाउ रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा? कम ऑन. बेसिक परचेस प्राइस, करेक्ट, प्लस cost of acquisition. I hope you understood this. What do you mean by cost of acquisition? मैंने रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया है, जापान से रॉ मटेरियल आने वाला है. सो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो भी रहेंगे वो सब ऐड होगा ना उसमें. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेसिकली इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्लस ओके, फेयर इनफ. इसमें आ गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज सब आया. और हाँ, वेरी गुड. टैक्सेस एंड ड्यूटीज. I can say if you are importing material, we have to pay custom duty, correct? And if you are purchasing locally, then GST will be levied. If that tax is refundable, then we are not supposed to consider that tax as our cost. If that tax is not refundable, then we have to consider that tax as our cost. Agreed? So यहाँ पे कौन सा taxes and duties लेंगे? In all accounting standards, wherever we will calculate cost, basically cost is determined for assets. जहां जहां cost calculate करेंगे वहां वहां पे रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल चेक करना पड़ेगा. समझ रहा है? पक्का? अगर रिफंडेबल है तो मोनील, रिफंडेबल है तो क्या नहीं करेंगे? हाँ, इट इज नॉट अवर कॉस्ट बिकॉज वो टैक्स हमको रिफंड मिलने वाला है. इफ इट इज नॉन रिफंडेबल देन तो ऐड करेंगे इट इज अवर कॉस्ट. यू अंडरस्टूड फंडा? ओके, यहां तक क्लियर? और क्या आएगा? क्या माइनस किया? और रिबेट्स सुना है? ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स कुछ रहेंगे. वी विल डू दैट. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं. यहां तक क्लियर? पक्का? रॉ मटेरियल क्लियर? सेकेंड नहीं, सारे डायरेक्ट ही हैं, बट डायरेक्ट में क्या क्या लूं? क्या लिखा? एएस लैंग्वेज, एएस का लैंग्वेज है ये. परचेस प्राइस, कन्वर्जन कॉस्ट एंड थर्ड क्या है मालूम है? अदर कॉस्ट. नहीं पता है? अभी देख ले. करेक्ट? ये सबको ऐड करेंगे तो आई विल गेट व्हाट? 'कॉस्ट'. मतलब कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है.
वी हैव फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। पहले कॉस्ट पता होना चाहिए, उसके बाद कॉस्ट में मतलब कॉस्ट डिटरमाइन कैसे करेंगे, उसके कॉस्ट फॉर्मूले हैं, और उसके बाद एनआरवी पता होना चाहिए, तो हम विच एवर इज लोअर करेंगे। सर हमको तो 11th-12th में तो कॉस्ट और एनआरवी दोनों दिया था, हम लोअर लेते थे, अग्रीड, फाइन कैसे करेंगे वो यहाँ सीखेंगे AS2 में। दैट प्रिंसिपल वॉज एज पर AS2, बट हम फॉलो यहाँ करेंगे हाउ टू डिटरमाइन। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन कॉस्ट? रॉ मटेरियल तो खरीद लिया, अभी उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का क्या क्या खर्चा होगा, बोलो बराबर है? वेजिस, कैरेज, फ्रेट, ड्यूटी, पावर, फ्यूल, कोल, गैस, वाटर, बोल दो एक एक करके, सब बोल दो। खेल रहे हैं मेरे साथ। कन्वर्शन में क्या क्या आएगा ये पूछेगा मोनिल, ये सब बैठ कर, तेरे आजू बाजू वाले का भी नंबर आने वाला है आज। लेबर कॉस्ट, करेक्ट, कल से कोई उसके बाजू में ही नहीं बैठेगा। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आई कैन से वी आर शर्ट मैन्युफैक्चरर, रॉ मटेरियल इज अवर क्लॉथ, करेक्ट, बोलो। टेलर को कपड़ा दिया हमने, उसको बोला एक शर्ट स्टिच करने का 300 रुपीज देंगे, व्हाट इज दैट 300? लेबर कॉस्ट। और क्या होएगा खर्चा? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ए जागो, सोए पड़े हो मोनिल। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन है बेटा, इधर office admin and selling distribution will not be considered for stock valuation. Do you know this? एक मैं summary, एक line, one liner दे देता हूँ, सुन लो। If you are valuing stock, then don't consider P&L items, that's it. सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग वाले आइटम्स आएंगे, क्लियर? और क्या लिखा इधर? You understood? Labor cost and variable production overheads. Cost per unit is constant. What is constant? लैंग्वेज समझाइए। वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, हाँ ना छोड़ना, क्या है वायरस, कुछ नहीं होता है। हाँ, ऐसा क्या है कि लेके जाएगा वो? एक मिनट, पॉइंट इज कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। लैंग्वेज समझा क्या? लैंग्वेज समझा क्या? मैंने टेलर को एक शर्ट स्टिच करने का 300 रुपया दिया, व्हाट इज 300? कॉस्ट पर यूनिट। अभी मैं 2 शर्ट देगा तो पर यूनिट तो सेम ही रहेगा ना, 300। 5 शर्ट देगा तो भी पर यूनिट तो सेम ही रहेगा ना। सो इन वेरिएबल ओवरहेड्स ऑलवेज कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, बराबर है? फिक्स्ड ओवरहेड्स में क्या रहता है बेटा? टोटल कॉस्ट इज कांस्टेंट, टोटल कॉस्ट इज कांस्टेंट। समझा कि नहीं समझा? हाउ टू फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट इन दिस सिनेरियो? कैसे फाइंड करेंगे कॉस्ट पर यूनिट? फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो, बराबर है? नहीं, ध्यान से सुनना।
normal capacity or actual production, whichever is higher. डिनोमिनेटर में हायर लेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा एंड कंजर्वेटिज्म कैन बी फॉलोड. मेरा कॉस्ट पर यूनिट कम होएगा तो स्टॉक वैल्यूएशन कम होगा, स्टॉक वैल्यूएशन कम होगा तो कंजर्वेटिज्म बेटर वे से फॉलो कर पाएंगे. इसलिए डिनोमिनेटर क्या लेना है, नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर. एक मिनट, यहां तक समझा तो पक्का आएगा. 2-3 समय फिक्स्ड ओवर इट्स. यस मैम. नॉर्मल कैपेसिटी ओके. ये क्लासरूम में कितने सब स्टूडेंट बैठ सकते हैं? और एक बेंच पे 4-4 बैठ सकते हैं. वी हैव 20 बेंचेस हियर. 80 इज अ नॉर्मल कैपेसिटी. समझ रहा है क्या? दो बैठने का बात कर रहे, सोने का नहीं. हद हो गया यार. मोनेल तू करे छे यार. जे पण जो भी बोलेगा लीडर तू ही है इधर. कैप्टन, यू आर द कैप्टन. कोई भी कुछ किया पहले तू अंदर जाएगा. आजू बाजू वाले बोले कैप्टन नहीं है सर, तो इसको हम लीडर ही नहीं मानते. गांव का नाम भूल जाता है, रिक्शा में जाता है. हद हो गया यार. ये मेरे को याद रहेगा यार. केवी रीते बाय रोड, हाँ रिक्शा में जाता है. हद हो गया. सही था बाय द वे, स्पॉन्टेनियस आंसर एकदम. हाँ ऑटो में. मैं बोला बस हुआ चलो. वो भी कहाँ से, साउथ बॉम्बे से लेके जाता रहेगा ना ऑटो. नहीं. एक मिनट चलो फटाफट रिवाइज करते हैं हमने अब तक. एक मिनट, आपको समझा? नॉर्मल कैपेसिटी 80 स्टूडेंट्स कैन सिट इन दिस पर्टिकुलर क्लासरूम, बट वी हैव अराउंड 20 स्टूडेंट्स. करेक्ट. व्हाट इज 20? एक्चुअल. 80 नॉर्मल divided by normal whichever is higher. नॉर्मली नॉर्मल कैपेसिटी हायर रहता है, बट कभी कभी एक्चुअल प्रोडक्शन अगर ज्यादा रहेगा, 80 के जगह पे बहुत डिमांड है तो 4 स्टूल और डाल दिया, बिठा दिया, 85 हो गए तो डिवाइड बाई 85. समझाइए. हैव यू अंडरस्टूड? नॉर्मली किससे डिवाइड करना है? नॉर्मल कैपेसिटी. बट इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन. क्लियर? पक्का? अभी देखो एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना अच्छे से. सुनेगा? जब ये क्लासरूम बना तो ये क्लासरूम का हम रेंट पे कर रहे हैं. अभी वो रेंट स्टूडेंट से रिकवर करेंगे. क्या सोचेंगे कि ये क्लासरूम का रेंट लेटेस्ट से 80,000 पर मंथ और 80 स्टूडेंट का कैपेसिटी है, तो हम 1,000 रुपीज पर मंथ हर स्टूडेंट से लेंगे. बट अभी तो 20 ही स्टूडेंट है. इक्विवेलेंट करेंगे ना बेटा. कैपेसिटी तो कांस्टेंट ही है ना. पूरा महीना 80 था ना, बेंचेस चेंज हुए नहीं, कैपेसिटी कांस्टेंट है. इक्विवेलेंट करेंगे. आपके बैच में 20 3 घंटा, दूसरे के बैच में दूसरे 40, तो कैलकुलेट करेंगे. डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने? 80 ही किया है ना, वो तो कांस्टेंट ही है. नॉर्मल कैपेसिटी मैंने 1000 में सबको चार्ज कर देगा, अदरवाइज में कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं. करेक्ट? समझ रहा है या? चलो. सो माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट इज constant. We want to find out per unit. How to find out cost per unit? So fixed overheads divided by actual capacity or normal capacity, whichever is higher. Normally normal capacity ही ज़्यादा होता है, तो logically normal capacity ही लेना चाहिए. But अगर actual ज़्यादा है, then go for actual. Clear? पक्का? ये क्या होता है? हाँ अदर कॉस्ट क्या होता है? मैं बोला ये क्या है? अदर कॉस्ट. सही है यार.
बोलते रहने का ऐसा थोड़ा, मुझे भी अच्छा लगता है, मोनिल को लगता है कि हाँ बधाने ले छे। बोलो इधर अदर कॉस्ट में क्या आएगा? बीकॉम का आंसर है ये। बीकॉम में सही ना, तो मार्जिन मार्जिन ड्रॉ करके लिखते हैं ना। ट्वेल्थ में मार्जिन ड्रॉ किया था कि नहीं पेपर में? बहुत बड़ा ड्रॉ करते हैं और बीच में मार्जिन बचता है ऐसा, और फिर बीच में पेपर लिखता है। सुपर्ब यार। कोई पूछेगा वो मार्जिन क्यों ड्रॉ किया है? सर वो टीचर ने एक जगह पे राइट मारेगी, दूसरी जगह पे मार्क्स देगी। सुपर्ब, लगे रहो मुन्ना भाई। ट्वेल्थ में किया था ड्रॉ, मार्जिन ड्रॉ किया था? एक साइड के दोनों साइड? ओ साइड, सुपर। ओसी में तो 2-4 सप्लीमेंट ले लिया रहेगा इसमें। 7 सप्लीमेंट। कितना मार्क्स कितना आया? 92। वजन करके मार्क्स देते, एक मिनट वजन करके मार्क्स मिला है। हाँ लिखा तो क्या है, ज्यादा लिखा था ना। साइड में ऐसा मस्त मार्जिन, बीच में मार्जिन लिखो भरो। अरे तो साइड में बचता क्या है, मार्जिन ही बचता है ना फिर। इन शॉर्ट उसने पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इधर राइट मारेगी, उधर मार्क्स देंगे, उधर कमेंट्स लिख सकते हैं। मार्जिन का पर्पस क्या है? एक साइड से फटे नहीं और एक साइड तो ऑलरेडी एक मार्जिन रहता ही है। ओ देखा, मैं बोला ना। ओके, कितने बड़े बड़े मार्जिन, ओके फटे नहीं, उसके लिए मार्जिन छोटे भी चलते हैं। तुम पूरा सच्ची ठीक है चलो, 92 इज गुड है इन ओसी। यू कैन टीच ओसी, मतलब आउट तो मजाक कर रहा था। so you can teach them ना how to write and how to fill 6 to 7 supplements। क्या डायग्राम ड्रॉ करके आया था क्या? डायग्राम कैसे? चार्ट ड्रॉ करेंगे, उसमें वो भी कनेक्टर भी बड़े बड़े ड्रॉ करेंगे, 3-3 लाइन के। नहीं ये कैसे, मैंने देखो 1 लाइन का ड्रॉ किया, दिख रहा है 1 लाइन। इसको मेरे को बड़ा करना है तो मैं 3 लाइन तक लेके जाएगा, नीट एंड क्लीन चार्ट। फिर तो मिलेगा ना 92। करेक्ट। हाउ मच यू स्कोर्ड? 88। तो 4 मार्क वो मार्जिन का ही है मैडम। अभी फाउंडेशन में किया था कि नहीं किया? हाँ देखा, टाइम ही नहीं था। क्यों? 15 मिनट पहले पेपर मिलता है। नहीं, क्वेश्चन पेपर मिलता है, करेक्ट। बाद में तुमको ऐसा लगा कि पेपर बहुत लेंदी है 15 मिनट पढ़ के, और तुम इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया। 12th में तो बहुत टाइम रहता है, 2 बार लिख सकते हैं, है ना। अकाउंट्स का पेपर में तो बहुत टाइम रहेगा। अकाउंट्स में था सफिशिएंट। तुम लोग तो अभी जो सीए करते रहते हैं या सीए वाले रहते हैं ना माइंडसेट, वो लोग तो उड़ा देते हैं, बोलते हैं 2 घंटा 2.25 घंटे में हो गया सर। मैं ऑप्शन में लिख के आया और नीचे नोट डाला है, चेक एनी क्वेश्चन, ऑल आर करेक्ट। करेक्ट, ये सब करके आता है पब्लिक, और फिर वो लोग बेचारे चेक भी करते हैं। सब मार्क्स देते हैं क्या फिर 100 के ऊपर? नहीं। हाउ मच यू स्कोर्ड इन 12th स्टैंडर्ड ओवरऑल? वो फिर कम है, ओसी ज्यादा आया, मैथ्स में क्यों कम? हाँ एमसीक्यूज रॉन्ग किया 12th में। आपको कितना आया मैथ्स और अकाउंट? आपका तो एवरेज परसेंटेज भी उतना ही है ना। हाँ पहचान था, ऐसा लगता है। तो क्या पूछा था? सुपर यार। अच्छा वो बैंक ड्रॉ करके नहीं आया? तुम तो बैंक ड्रॉ कर गए। देखो ये रहा, इधर से आदमी चेक देता है, वो थप्पा मार के देता है, सब फंक्शन। काउंटर पे भी, उधर भी 2 जन खाना खा रहे हैं, एसबीआई है, लंच टाइम का बोर्ड। हाँ ऐसे सब ड्रॉ नहीं किया ना, नहीं तो घर पे आते हैं वो लोग फिर। हाँ तो ये पर 92 हाईएस्ट कितना है ओवरऑल मुंबई? ओसी स्कीम, ओसी में 98। और अकाउंट्स तो 100 on 100 रहेगा।
मैथ्स भी रहेगा ऑलमोस्ट 99 या 100, और थियरी और क्या था, इको में कितना, हाउ मच यू स्कोर्ड इन इको, 90s में था, मतलब आपका, और अकाउंट्स में 98 है ना ओवरऑल, एम कॉलेज HR, ठीक है, फेयर है, HR वाले को देते हैं। एनीवेज अटेंडेंस है क्या अभी आप लोग को, नहीं तो जाते हैं तो पेरेंट्स को बुलाते हैं, ऐसा है। हाँ, कुछ ही नहीं करेंगे ना ऑब्वियसली, लेके भी नहीं जाते, बहुत सैंडविच वाले को लेके जाते सच में सुनो इधर, आस्था सुनो, आप कौन से कॉलेज, सोना है ना आप लोग का, पोदार वाला कोई है क्या, आप पोदार है, आपका सोमाया, तो ये रहा ना सोमाया, इधर से ऐसा पाली क्रॉस किया तो सोमाया, गुड, इधर भी आप यू सोमाया, सब सोमाया है, आप भी सोमाया है, HR है, 2 HR है, बाकी सोमाया एक पोदा, ओके ठीक है। सुनो क्या, अरे हाँ, अभी वो रिकलेक्ट कर रहे हैं कि आज तक क्या क्या बोला है ना मोनिल, रिक्शा में जाते हैं तो ऐसा होता है। एनीवेज शैल वी प्रोसीड, थोड़ा पड़ेगा ना यार, सुनो AS2 वी स्टार्टेड, AS2 क्या था, फटाफट बोलो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंटरीज, क्विकली, इन्वेंटरीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर sale in ordinary course of business or in the process of production or in the form of material or supplies to be consumed in the production process, do you agree with this, yeah, ये standard का objective क्या है, to determine profit or loss, correct profit or loss, second true and fair view of financial position, you know बैलेंस शीट को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, P&L को बोलते हैं परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, क्योंकि नेट प्रॉफिट मिलता है तो परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बोलते हैं, उसको पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, बैलेंस शीट को बहुत जन कैपिटल स्टेटमेंट बोलते हैं, P&L को रेवेन्यू स्टेटमेंट बोलते हैं, ये सब मैनेजमेंट वाले बोलते हैं, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है, मतलब FM में। हाँ ओके, तो वही मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मली FM वाले रहते हैं ना, दे कैन यूज, मार्केट में ये लैंग्वेज चलता है, हम अकाउंट्स में हैं तो वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में जो लैंग्वेज हम यहाँ यूज करते हैं वो यूज होता है, अकाउंटिंग में बैलेंस शीट ही बोलते हैं और P&L स्टेटमेंट बोलते हैं फॉर कंपनीज, प्रोप्राइटरी कंसर्न पार्टनरशिप रहेगा तो P&L अकाउंट बोलते हैं, अभी हर सब्जेक्ट का अलग अलग लैंग्वेज रहेगा, यू शुड नो हाउ टू अडॉप्ट इट, करेक्ट, एक मिनट वापस, ऑब्जेक्टिव क्लियर, थर्ड पॉइंट एप्लीकेबिलिटी, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, स्टैंडर्ड किसको एप्लीकेबल नहीं है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर WIP इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, WIP इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, देन लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ऑयल एटसेट्रा, डू यू अग्री विद दिस, पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं, वैल्यूएशन प्रिंसिपल बोलो, फिनिश गुड्स WIP स्टॉक इन ट्रेड किस पे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट और NRV whichever is lower, एनी डाउट से नो, बराबर ना, आगे कॉस्ट कैसे फाइंड करने का, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, परचेज प्राइस मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट, फिर कन्वर्जन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, परचेज प्राइस रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा, बेसिक परचेज प्राइस प्लस एक्विजिशन के लिए कॉस्ट प्लस टैक्सेस इफ नॉन रिफंडेबल, डू यू अग्री, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स इफ एनी, क्लियर, what about conversion cost, labor cost, variable production overheads, fixed production overheads, labor and variable CPU cost per unit constant रहता है, what about fixed production overheads, total cost constant रहता है, CPU फाइन करना पड़ता है, that is fixed overheads divided by normally normal capacity लेने का, but अगर actual production ज़्यादा है तो वो लेने का, understood, करें, in short whichever is higher, understood this, अदर में क्या आएगा बोलो,
वो सब इधर वेरिएबल प्रोडक्शन फिक्स्ड प्रोडक्शन में आ गया। वेरिएबल प्रोडक्शन फिक्स्ड में आ गया। डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी वो तो फिक्स्ड ही है ना। हाँ, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, पीएनएल का कॉस्ट है। हाउ कैन यू कंसीडर इन स्टॉक वैल्यूएशन? ये कॉन्सेप्ट में ब्रेक, ये मस्ती नहीं चाहिए। ये पीएनएल के आइटम्स विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर स्टॉक वैल्यूएशन। अभी ये अटेम्प्ट नहीं, उसके पहले के अटेम्प्ट में क्या पूछा मालूम है? एक्सप्लेन और लिस्ट डाउन द कॉस्ट विच आर एक्सक्लूडेड व्हाइल वैल्यूइंग इन्वेंट्री। मतलब इंक्लूड पढ़ा रहा हूं ना, अभी वो लोग ने एक्सक्लूड पूछा है। इसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे। एक थियरी क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट। बोलो किधर? फैक्ट्री का तो फिक्स्ड प्रोडक्शन में आ जाएगा, फैक्ट्री रिलेटेड सब आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल देता हूं, सुनो अच्छे से। लेट अस से इन द मंथ ऑफ दिसंबर तूने ना एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखा, एग्जाम्पल है। तो तुम्हारा घाटकोपर का एक टीम बना है, गर्ल्स एंड बॉयज सब मिक्स एक टीम बनेगा। अभी सब ऐसा मुंबई का पूरा मुलुंड में 2 टीम बनेगा, 2 टीम बॉयज का बनेगा, एक टीम गर्ल्स का बनेगा, करेक्ट? 3 इधर एक टीम बनेगा, 4 करेक्ट। वैसे ही बोरीवली में एक टीम बनेगा, 5 अंधेरी में बनेगा एक, 6 ऐसे 6 टीम का टूर्नामेंट। मई 26 वाले, वैसे ही जैन 26 भी रहेगा ना उसका, वैसे ही नेक्स्ट बैच भी आ गया रहेगा उसका। ऐसे 10-12 टीम हो गया, एक टूर्नामेंट रखा हम लोग। अभी ये हर टीम के लिए अलग अलग टी शर्ट्स बनाना पड़ेगा, जर्सी बनाना पड़ेगा, करेक्ट? तो हमने जर्सी का ऑर्डर दिया, उसको बोला एक 1 डे का क्रिकेट टूर्नामेंट है तो वी वांट जर्सी। उन्होंने बोला ओके डन। कितने का? तो बोलता है सर एक जर्सी 300 रुपीज़ का है। ऐसे ओके फेयर इनफ। फिर मैंने उसको बोला 300 का है, अभी मेरे को उसके है ना आगे टीम का नाम चाहिए, क्योंकि हर टीम के अलग अलग नाम रखेंगे। पीछे प्लेयर का नाम और नंबर चाहिए, बरोबर? तो बोलेगा सर आप बोले क्या बोल रहे हो? वो बोलेगा सर आप जो बोलेंगे प्रिंट करके दूंगा, बट 50 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा। बोलो ये कॉस्ट को हम क्या नाम देंगे? अदर कॉस्ट, स्पेशल डिजाइनिंग कॉस्ट, that is other cost. Any cost which is incurred to bring inventory at present location and condition, that cost is other cost. समझ रहा है? मतलब ये कंडीशन में, मतलब वो जर्सी फाइनली तुम पहन सके वैसे कंडीशन में लाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर करेंगे, दैट इज अदर कॉस्ट, स्पेशल डिजाइनिंग कॉस्ट। समझाइए। दूसरा एग्जांपल, वी आर शर्ट मैन्युफैक्चरर, हम शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर हम अनब्रांडेड शर्ट सेल कर रहे हैं ना, 1000 रुपीज़ में बिक रहा है। यही शर्ट पे मैं सिर्फ प्रोवोक का टैग लगाता हूँ ना, तो 2500 में बिक रहा है। प्रोवोक के साथ में मैंने डिस्कशन चालू किया, प्रोवोक के साथ डिस्कशन स्टार्ट हुआ। समझ रहा है आप लोग को? तो सर आपका टैग चाहिए मेरे को। वो बोला टैग तो दे देंगे बट क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा नाम खराब होगा। तो दे केम टू चेक आउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। चेक करके बोला यार ये तो हमारे से भी अच्छा है। दे अलाउड अस टू यूज देयर टैग। मैं बोला थैंक यू सो मच, बोलता है नो थैंक यू, 500 रुपीज पर टैग। उसको क्या बोलते हैं? मैं बोला हाँ ओके देगा, उसको बोलते हैं रॉयल्टी, 500 रुपीज पर टैग। मैं बोला बिकेगा तो देगा, बोलते हैं ना प्रोड्यूस करेगा तो 500 देने का, दैट इज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन
and if it is royalty on production, it will be debited to manufacturing or trading account. It will be a part of your stock valuation. That is our other cost. समझा कि नहीं समझा? पक्का? लिख दो. अदर कॉस्ट में लिखो स्पेशल डिजाइनिंग कॉस्ट. एग्जाम्पल ये लिखो सीधा. स्पेशल डिजाइनिंग कॉस्ट है जगह, इधर ही लिखो. दो ही आइटम लिखना. कहाँ पहुंचे, क्या कर रहे हो? ये चार्ट है ना, उसमें ही लिखना बेटा. बनाया नहीं आप लोग ने, ये सिर्फ देख रहे थे, समझ रहे थे. ओके, लिख लो, अभी कॉपी कर लो. चलो पूरा ऊपर करूं कि मैक्स और करूं? कन्वेंस मतलब ट्रांसपोर्टेशन, एम्प्लॉय का, गुड्स का, ये रहा ना बेटा. कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन सब आ गया. यस सर. टेम्परेचर बढ़ाओ. आई थॉट डाउट है वो. कन्वेंस है ना बेटा, एम्प्लॉय को पे करते हैं. यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और कैरेज होता है गुड्स के लिए. चलो, एनीवेज वी हैव हाफ एन आवर. विल कंक्लूड मैक्सिमम पार्ट जितना पॉसिबल है. करेक्ट. सुनो, यहां तक समझा क्या? पहले वो बोल. कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा वो क्लियर? कॉस्ट एक्सक्लूड्स, ये ध्यान से सुनना. बोल, कॉस्ट में क्या क्या नहीं आएगा? कम ऑन. कौन से कॉस्ट हम नहीं लेंगे फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन? कम ऑन. पीएनएल वाले कौन से नाम लिखने पड़ेंगे? ऐसा नहीं लिख सकता है. ऑफिस एंड एडमिन कॉस्ट. बरोबर है? बोलो. एक मिनट. ऑफिस एडमिन अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है देन इट विल बी कंसिडर्ड. ऑफिस एडमिन, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ. ऑफिस एडमिन अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है देन इट विल बी कंसिडर्ड. बेटा हाइला कैसे पॉसिबल है? फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट बिठा है, फैक्ट्री में एसी डाल के रखा है, फैक्ट्री, सुन लो, फैक्ट्री में एक एडमिन स्टाफ बिठा है. पॉसिबल नॉट पॉसिबल? पॉसिबल. दैट इज एडमिन रिलेटेड कॉस्ट बट फैक्ट्री के कनेक्शन में है, इट विल बी कंसिडर्ड. क्लियर? आगे, ये आगे क्या लिखा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डेफिनेटली विल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल वैल्यूइंग इन्वेंट्री. उसमें कॉस्ट पे नहीं लेने का. थर्ड बोलो. बोल बोल, बरोबर है. सॉरी, बोल. अबे सूखे थे आप, बरोबर बोल रहे हैं. जैनिल करेक्ट. हाँ, उसको हम ये नाम देंगे अकाउंट्स में. नहीं, पहले एक एक एक, ये डेंजरस है. बोरोइंग कॉस्ट सुना है? लोन लिया रहेगा, दैट इज बोरोइंग. उसके ऊपर जो भी कॉस्ट पे करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट. सो बोरोइंग कॉस्ट मतलब क्लियर. इंटरेस्ट इज नॉर्मली excluded normally, but if accounting standard 16 permits then it will be included.
इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, आज के बाद कभी भी आएगा ना बेटा, आज के बाद कहाँ पे भी बोरोइंग कॉस्ट आया, क्या बोलने का, सब्जेक्ट टू AS16। AS16 सुनना है, 2 मिनट। क्या बोलता है AS16? AS16 का नाम है बोरोइंग कॉस्ट। AS16 बोलता है ई asset is a qualifying asset. Which asset? Qualifying asset. Then borrowing cost will be capitalized. It will not be charged to P&L. Normally borrowing cost किधर जाता है? Interest किधर जाता है? P&L normally. But AS16 is a relaxation standard. वो बोलता है don't put interest cost in P&L, उसको asset में capitalize करो। फिर जाएगा धीरे धीरे करके हर साल P&L डेप्री के फॉर्म में जाएगा। समझ रहा है? स्टॉक में डाला तो स्टॉक जब भी वो P&L में लेके जाएंगे, ट्रेडिंग में लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड रहेगा बोरोइंग कॉस्ट, तो चले जाएगा। बोलेगा बट ऐसा क्यों बोला है? सुनना अच्छे से, मेरे को सोच समझ के बोलना। मैं ना एक ऑफिस बिल्डिंग बना रहा हूँ, 10 करोड़ का बिल्डिंग है, और मैंने लोन लिया, मे बी 5 करोड़ का लोन लिया, और वो 5 करोड़ रुपए में इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, बराबर है? अभी ये इंटरेस्ट, ये बिल्डिंग अब तक रेडी नहीं है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, 3 साल लगेगा बिल्डिंग को कंप्लीट होने, बट इंटरेस्ट तो मैं हर महीने पे करेगा। तो वो इंटरेस्ट को अगर मैं ईयर एंड को P&L में डाल दिया तो क्या होगा मालूम है? मैचिंग कॉन्सेप्ट वायोलेट हो जाएगा। अब बोलेगा कैसे? कैसे? सुनो, वो बिल्डिंग से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, बिकॉज बिल्डिंग क्या है? अंडर कंस्ट्रक्शन, उसको मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ बिजनेस के लिए। तो इफ आई एम नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ दैट बिल्डिंग, तो मेरा इनकम साइड पे उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो सामने एक्सपेंस क्यों बुक कर रहे हो? सिर्फ सामने एक्सपेंस बुक करते जाओगे, बट सामने क्रेडिट साइड पे तो कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है आपके ट्रेडिंग क्रेडिट में, P&L क्रेडिट में, तो इट विल बी अ वायोलेशन ऑफ व्हाट? मैचिंग कॉन्सेप्ट। बोलो, बिल्डिंग रेडी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, डेप्री चार्ज कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं करते हो? मैचिंग वायोलेट हो जाएगा, उससे कोई बेनिफिट ही नहीं आ रहा है, इनकम में कुछ नहीं लिखा और सामने डेप्री मार देगा तो लॉस हो जाएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट वायोलेट होता है ना, इनकम के सामने एक्सपेंस मैच होने चाहिए। मैच मतलब जो इनकम कमाने के लिए खर्चे किए हैं वही दिखने चाहिए। ये डेप्रिसिएशन तो अब तक हुआ ही नहीं है बिल्डिंग का, बिकॉज बिल्डिंग इज नॉट रेडी। समझता है? तो मेरे को बोलो, ये 3 साल लगेगा बिल्डिंग बनाने के लिए, मैंने लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, ये इंटरेस्ट P&L में जाएगा कि बिल्डिंग में कैपिटलाइज करेंगे? बिल्डिंग में कैपिटलाइज करेंगे एज पर AS16। AS16 बोलता है इफ एसेट इज अ क्वालिफाइंग एसेट देन बोरोइंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड। सर क्वालिफाइंग एसेट मतलब द एसेट विच विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी, जिसको 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंशियल पीरियड लगता है बनने के लिए, वो एसेट को हम बोलते हैं क्वालिफाइंग एसेट। और क्वालिफाइंग एसेट रहेगा तो इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज करते हैं। समझा कि नहीं समझा? अब बोलेगा सर ये तो आप PPE का एग्जांपल दे रहा है, फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल, इन्वेंट्री में क्यों ये अप्लाई कर रहे हो? सुनो इधर, सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस नहीं है, सुनना। वाइन सुना है? मोनिल एकदम खुश हो गया, ऐसा ऐसा दुखी बैठा था यार, कितना बोलते हैं फिर। और वाइन, हाँ ये समझ रहा है। आई हैव हर्ड दैट ओल्डर वाइन इज अ बेटर वाइन, ओल्डर वाइन इज अ बेटर वाइन। अभी सुनना, अपना वाइन बनाने का, सुला वाइन अपना बनाने का, वाइन बनाने का फैक्ट्रीज है,
करेक्ट। हम ग्रेप से वाइन बना रहे हैं, और भी कोई फ्रूट से बनता रहेगा, वी डोंट नो। वाइन बना रहे हैं और वो वाइन को स्टोर करके रखते हैं 10 साल तक, 12 साल तक, 15 साल तक। जितना पुराना होते जाएगा उतना वो बेटर होते जाएगा। अभी वाइन बनाने के लिए हमने लोन लेके रखा, उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अभी बोलो वो इंटरेस्ट का क्या कर रहे हैं? नहीं जाएगा पीएनएल में। कहां मिल रहा है बेनिफिट? एसेट बेचेगा, वो अपना वाइन बेचेगा तभी आपको क्रेडिट मिलने वाला है पीएनएल में। तब तक के लिए वो वाइन में ऐड करते जाओ इंटरेस्ट, हर साल वो इंटरेस्ट कैपिटलाइज होएगा। अग्रीड? हेलो, कौन सा स्टैंडर्ड बात करते हैं? A16 रिजल्ट के बाद आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, बोरोइंग A16 का नाम क्या है? बोरोइंग कॉस्ट। इट इज अ रिलैक्सेशन स्टैंडर्ड। बोरोइंग कॉस्ट A16 क्या बोलता है कि if asset is a qualifying asset then borrowing cost will be capitalized, it will not be debited to P&L straight away। उसको कैपिटलाइज करो मतलब एसेट में डालो। अगर पीपीई में डाला तो वो डेप्री के फॉर्म में पीएनएल में जाएगा, एक साल में नहीं जाएगा, ओवर द ईयर जाएगा। और इन्वेंट्री में डाला, लाइक वाइन में ऐड करते गए, तो जब भी वाइन बेचेंगे तभी वो पीएनएल में जाएगा। बेचेंगे तो इनकम क्रेडिट होगा और कॉस्ट डेबिट होगा। समझा कि नहीं समझा? कौन बोलता है A16 क्लियर? ऑफिस एडमिन कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट। आगे क्या लिखा? मतलब A16 बोलेगा कैपिटलाइज करो, तो कैपिटलाइज करने का मतलब इन्वेंट्री में ऐड करने का, अदरवाइज नॉर्मली इट इज एक्सक्लूडेड। क्या लिखा है? सुना है स्टोरेज का? हाँ, तो वो लेने का कि नहीं लेने का? नॉर्मली एक्सक्लूडेड। क्या एक्सेप्शन? यस नहीं? नॉर्मली हाँ। सारे स्टोरेज कॉस्ट को प्रिजर्व करने के लिए ही होता है। ओके नहीं, आप कभी आएगा प्रोडक्शन में? नहीं, स्टोरेज कॉस्ट फिक्स प्रोडक्शन में कभी लेने का? वो मैन्युफैक्चरिंग है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। स्टोरेज कॉस्ट नॉर्मली एक्सक्लूडेड, but if it is required due to inherent nature of the product, then that storage cost will be included, like ice creams। अभी अमूल है तो अमूल को पता है आइसक्रीम में ओपन में रख ही नहीं पाएगा, आइसक्रीम को स्टोर ही करना पड़ेगा, तो उसका स्टोरेज कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड। बहुत शॉप वाले हैं ना, वो बोलते हैं ठंडा करने का पैसा लगेगा, तो देने का रख के। ये कॉस्ट मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, मैक्सिमम। एमआरपी मतलब मिनिमम नहीं, सब आ गया उसमें। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग। वो स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूडेड है उसमें, क्योंकि उसको पता है अमूल को कि ये आइसक्रीम 1 महीना चलने वाला है, उसने 1 महीने का स्टोरेज कॉस्ट डाल के रखा है उसमें बॉस। तभी वैल्यूएशन कॉस्ट फाइंड किया रहेगा ना, तभी समझ रहे हैं आप लोग को। एंड आपने देखा रहेगा बहुत सारे शॉप्स रहते हैं ना, उसमें अमूल का आइसक्रीम का आउटलेट है, तो अमूल खुद देके जाता है वो रेफ्रिजरेटर, तो दे नो वेरी वेल कि क्या खर्चा होने वाला और कैसे होने वाला।
समझ रहा है? मेडिसिन, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में वैक्सीन एंड मेडिसिन बनते हैं ना, जिसको कंपल्सरीली स्टोर करना पड़ता है। कोल्ड स्टोरेज इज रिक्वायर्ड, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे उसको स्टोर करना पड़ता है। That storage cost is mandatorily required due to the inherent nature of the product. That storage cost will be included in stock valuation. Otherwise, all storage costs are excluded. ये गया कुछ नहीं बोला है तो सर एक्सक्लूड लिखा है किधर है? मैंने एक्सक्लूड में तो नहीं लेना। करेक्ट, देखो ब्रैकेट में नॉर्मली एक्सक्लूडेड, normally excluded. However, if it is required, necessarily due to inherent nature of the product, due to inherent nature of the product, then included. क्लियर? 4 आइटम समझा? अभी नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। You know abnormal loss? Loss by fire, loss by theft, loss due to accident, loss due to war, loss due to flood. These are abnormal losses. क्या इफेक्ट देते हैं फाइनल अकाउंट में? ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट। ट्रेडिंग क्रेडिट मतलब ट्रेडिंग में इफेक्ट दिया कि निकाला? ट्रेडिंग में इफेक्ट दिया कि निकाला? एबनॉर्मल लॉस का डिस्कशन कर रहा हूं, ट्रेडिंग में इफेक्ट दिया कि ट्रेडिंग से इफेक्ट निकाला? गुड्स लॉस्ट बाय फायर, दो इफेक्ट बोलो। ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट। हाँ, परचेस में से माइनस करते हो क्यों? नहीं, वो मैं समझा, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। बॉस, व्हाई डू यू बिलीव कि ओनली परचेस वाला गुड्स लॉस बाय फायर हुआ है? ओपनिंग स्टॉक वाला भी तो हो सकता है। तुम ट्रेडिंग क्रेडिट लिखेगा, इट विल बी अ बेटर प्रेजेंटेशन। उन्होंने कहाँ करवाया? ये 11th 12th में करवाया रहेगा। 12th का आपका बोर्ड वो करता रहेगा, इसीलिए करवाया रहेगा। लॉजिकली कहाँ आना चाहिए? ऑब्वियसली ट्रेडिंग क्रेडिट। It has to be on trading credit side. Why? Because it can be from opening stock, it can be from purchases, goods lost by fire, lost by theft. So logically trading credit में डालो, that will be a better presentation. आप क्या assume कर रहे हो मालूम है कि परचेस किया ना, उसमें से ही फायर हुआ है। उसको फायर को थोड़ी पता है कौन सा लेने का। लॉस बाय थेफ्ट तो हम परचेस से माइनस करते हैं। वो चोरी करने आया, उसको मालूम है ये लेटेस्ट वाला है, ये लेके जाओ। ब्रेड थोड़ी है, ब्रेड में यही करता है ना मोनिल, नीचे से उठाता है। नहीं, मेरे को पता है, देखा है मैं तेरे को।
मतलब करता है ना। चलो यहां तक समझा, पक्का? हाँ तो दो इफेक्ट बोलो मेरे को, लॉस बाय फायर, ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट। इसका इंटरप्रिटेशन दो, सीए कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए, ये इसका मीनिंग क्या होगा? गुड्स गॉन, ओके। तो हमने ट्रेडिंग में इफेक्ट दिया कि ट्रेडिंग से इफेक्ट निकाला? बोलो, ट्रेडिंग से इफेक्ट निकाला एंड पीएनएल डेबिट में इफेक्ट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ट्रेडिंग से निकाला बट था किधर? ओपनिंग स्टॉक या परचेस में था, बरोबर है। और एक पॉइंट पूछूं, तुम जो प्रेजेंटेशन देता है उसमें दूसरा मिस्टेक क्या है? मेरे को सोच समझ के बोलना। मैंने परचेस रॉ मटेरियल किया पर लॉस बाय थेफ्ट फिनिश गुड्स हुआ, तो तुम बाकी का एक्सपेंस, वेजेस, कैरेज, ये सब में से भी माइनस करो ना फिर थोड़ा थोड़ा। तुम उधर से क्रेडिट में लिखो, बेटर ऑप्शन। हम बचपन से वही करते हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट। ये मुंबई में आई डोंट नो, मैं सी आउट ऑफ मुंबई जब भी जाता था तभी, वो रायपुर जाता था वो लोग बोलते थे, हैदराबाद जाता था वो लोग बोलते थे सर लेस फ्रॉम परचेस, लेस फ्रॉम परचेस, मैं ले लेता था। मुंबई वाले को समझाता हूँ, ये तुम लोग, आई होप यू अंडरस्टूड कि टेक्निकली क्यों रॉन्ग होता है वो। परचेस में तो सिर्फ रॉ मटेरियल में से माइनस कर रहे हैं आप, या परचेस में बाकी वो जो गुड्स गया उसमें बाकी भी तो कॉस्ट इंक्लूड है। बेटर टू शो इट ऑन क्रेडिट साइड। एनीवेज माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, फेयर इनफ। या ट्रेडिंग क्रेडिट किया मतलब क्या किया? इफेक्ट निकाल लिया, इफेक्ट निकाल दिया। और किधर डाला? क्यों किया? पीएनएल डेबिट ठीक है, लॉस बुक किया, पीएनएल डेबिट में ट्रेडिंग से नहीं निकालेगा और पीएनएल में नहीं डालेगा तो भी तो लॉस बुक हो गया क्योंकि ट्रेडिंग डेबिट में पड़ा है। वो लॉस ट्रेडिंग एक्टिविटी से नहीं हुआ है, तो उसका क्या करते हैं, बरोबर बोलो। एबनॉर्मल लॉस का क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट ट्रेडिंग में रहने देते हैं कि ट्रेडिंग से निकाल देते हैं? ट्रेडिंग से निकाल देते हैं। आइटम ट्रेडिंग से निकाल दिया मतलब वो स्टॉक वैल्यूएशन में नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक वैल्यू करेंगे तभी कॉस्ट में क्या क्या लेना है अपने को? ट्रेडिंग वाले, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग वाले लेने हैं। एबनॉर्मल लॉस इज रिमूव्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, देन इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन स्टॉक वैल्यूएशन। डू यू अग्री विद दिस? लॉजिकली भी सोचो ना, अपन शर्ट मैन्युफैक्चर रहे हैं, अपने इधर लॉस बाय फायर हो गया, आग लग गया, बरोबर, 5 लाख का नुकसान हो गया। अभी नेक्स्ट सब रिपेयरिंग रिनोवेशन करवाया, अभी शर्ट बनाएगा तो 2000 का कॉस्ट था, उसमें 5 लाख ऐड करेगा, खुद को ही पहनना पड़ेगा। सोचो, एबनॉर्मल लॉस स्टॉक वैल्यूएशन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। ट्रेडिंग से क्यों निकालते हैं? बिकॉज वो गुड्स ट्रेड नहीं हुआ है, परचेस हुआ है बट सेल नहीं हुआ है। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग। जो गुड्स परचेस होता है बट सेल नहीं होता है उसको ट्रेडिंग से निकाल दो। गया कि गया? हाँ एक एक करके मैं सब लेगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मोनेल इफेक्ट्स बोलो। ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट। ट्रेडिंग क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ट्रेडिंग से इफेक्ट निकाला, पीएनएल डेबिट में एडवर्टीजमेंट डाला, बरोबर है। ओके, अभी ट्रेडिंग से क्यों निकाला? गुड्स परचेस हुआ है बट सेल नहीं हुआ है, फ्री में दिया है आपने, तो ट्रेड ही नहीं हुआ है तो ट्रेडिंग से निकाल दो। पूरा समझा कि पूरा समझा? गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड कैपिटल से माइनस। बोलो ट्रेड हुआ क्या? बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ क्या? नहीं हुआ, इसलिए ट्रेडिंग से निकाल दो। क्लोजिंग स्टॉक, परचेस हुआ, परचेस हुआ करंट ईयर में, हाँ, या ओपनिंग स्टॉक रहेगा या परचेस रहेगा। परचेस हुआ, सेल हुआ क्या? अनसोल्ड है, क्या करने का? नहीं नहीं, हाँ एक मिनट, ट्रेडिंग से निकाल दो क्योंकि ट्रेड नहीं हुआ है। किधर लेके जाएंगे? नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे।
जो भी आइटम नेक्स्ट ईयर में लेके जाना है उसको बकेट में डालना पड़ता है, वो बकेट का नाम है बैलेंस शीट, इसीलिए सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या होगा? या सेल होगा या वापस क्लोजिंग में आएगा। सेल हो गया तो ट्रेड हो गया, एंड नहीं ट्रेड हुआ तो वापस ट्रेडिंग से निकालो, नेक्स्ट ईयर लेके जाओ। दैट इज द वे इट वर्क्स। सिस्टम समझना, ये तो आप लोग को बहुत कुछ आता है बिकॉज अनुप सर ने सिखाया है। बिलीव मी, सच बोल रहा हूँ, नहीं तो पब्लिक को ट्रेडिंग का मीनिंग ही नहीं पता है। जीपी फाइंड करने का, सर जीपी फाइंड करने का, ठीक है, दे डोंट नो द मीनिंग। क्लियर? एक मिनट, इधर तक समझा? फाइनली बोलो, एबनॉर्मल लॉस को क्या करने का? वैल्यूएशन में कॉस्ट फाइंड करने के टाइम पे एक्सक्लूड, इन शॉर्ट ट्रेडिंग से निकल जाएगा, पीएनएल डेबिट में जाएगा। डू यू अग्री विद दिस? 2-3 क्वेश्चन है। फाइंड आउट एबनॉर्मल लॉस, ये मेरे को सोच समझ के बोलना। इनफैक्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ट्रेडिंग से निकालेंगे कितना? गुड्स क्वांटिटी निकालेंगे कि उसका अमाउंट? अमाउंट में क्या लेंगे? बरोबर है, क्या लेंगे? कॉस्ट। वो यूनिट पे जो भी खर्चे किए रहेंगे वो सब डाल देंगे उस पे। इन शॉर्ट, एबनॉर्मल लॉस विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। क्वेश्चन आएगा, लिख दो इधर ब्रैकेट में, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट। पक्का? एक डाउट है, व्हाट अबाउट नॉर्मल लॉस? नहीं, हैव यू हर्ड अबाउट नॉर्मल लॉस? पहले सुना है कि नहीं सुना है? एबनॉर्मल एंड नॉर्मल दो लॉस होते हैं। एबनॉर्मल लॉस इज अनएक्सपेक्टेड लॉस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू फ्लड, लॉस ड्यू टू वॉर, लॉस ड्यू टू राइट्स। ये कौन सा है? अनएक्सपेक्टेड। उसको ट्रेडिंग से निकाल देते हैं, पीएनएल में डाल देते हैं। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड, एक मिनट, एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड है, मुझे पता ही होने ही वाला है, ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही वैसा है कि मेरे को लॉस होने वाला है। Why are you believing we are only trader? We are manufacturer. 1000 मीटर कपड़ा लेके आया है, पूरा थोड़ी 1000 मीटर का शर्ट बनेगा, थोड़ा वेस्ट होएगा कि नहीं होएगा? डेड स्टॉक नहीं, मटेरियल वेस्ट होएगा कि नहीं होएगा? होएगा। पेट्रोलियम कंपनी हूं, क्रूड ऑयल लेके आया 1000 लीटर, उससे मैं 1000 लीटर पेट्रोल थोड़ी बना पाएगा, 10 लीटर तो इवॉपरेट हो जाएगा, तो 990 बना पाएगा। तो वो जो 10 लीटर इवॉपरेट होएगा, दैट इज एक्सपेक्टेड लॉस। पहले से मुझे पता है, ड्यू टू इनहेरेंट नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस। ये नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड लॉस। क्या करने का नॉर्मल लॉस का? 11th 12th फाउंडेशन, फाइनल अकाउंट चैप्टर सीखा, हर जगह पे एबनॉर्मल लॉस के एडजस्टमेंट्स आते थे। लॉस बाय फायर अमाउंटेड, गुड्स अमाउंटेड टू 10,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम 8,000। ओके ठीक है, ये सब इफेक्ट्स आप दे देते थे। एबनॉर्मल लॉस के एडजस्टमेंट सीखे हुए हैं। व्हाट अबाउट नॉर्मल लॉस? मतलब पीएनएल डेबिट में डालेगा? नहीं बनाया है। किधर इंक्लूडेड रहेगा? तो क्या करने का? एडजस्टमेंट दिया है फाइनल अकाउंट में, नॉर्मल लॉस 10,000, नॉर्मल लॉस 10,000, तो करने का क्या? व्हाट इफेक्ट वी हैव टू गिव? सुनो,
normal loss will not be removed from trading account. This loss is bound to happen. It is expected loss due to inherent nature of the product. Do not remove it from trading account and do not put it in P&L account. Whereas abnormal loss, we remove it from trading account, we put in P&L account. Abnormal loss should not affect my GP because GP is my trading profit, expected profit, buying selling का profit. Loss by fire, loss by theft मेरे GP को affect नहीं करना चाहिए. Whereas normal loss, it is expected loss. It should affect my GP. It should affect my GP. I hope you are understanding this. वो GP को affect करना ही चाहिए और normal loss का effect trading account में ही रहना चाहिए. Do not remove it from trading. Do not put in P&L. अगर final account में adjustment आ गया normal loss, answer is no effect. क्योंकि वो ट्रेडिंग डेबिट में ऑलरेडी है. अब बोलेगा किधर है सर? परचेस में. मैं 1000 लीटर क्रूड ऑयल परचेस किया था, उससे मेरा 990 लीटर ही बना है, तो मैंने सेल 990 लीटर किया, क्लोजिंग स्टॉक 0. बोलो अभी 10 लीटर किधर ज्यादा है? डेबिट में है ना, तो उसका कॉस्ट ऑलरेडी डेबिट में पड़ा है. डू नॉट रिमूव फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कीप इट इन ट्रेडिंग, बिकॉज वो हमारा इनहेरेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट का लॉस है, नॉर्मल लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस है. ट्रेडिंग से निकालने का नहीं, एनपीएनएल में नहीं डालने का. फाइनल अकाउंट नो इफेक्ट. अब बोलेगा इधर क्या करना है सर? सुन लो. नॉर्मल लॉस विल रिड्यूस माय गुड्स क्वांटिटी. मेरे गुड्स का क्वांटिटी क्या करेगा? वो कम करेगा. एंड अगर मेरा क्वांटिटी कम होगा तो मेरा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा. क्या इंक्रीज हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है नॉर्मल लॉस के कारण. ये पॉइंट, 2 पॉइंट समझे नॉर्मल लॉस के? पक्का नोट लिखो. Normal loss is to be considered कौन है इधर? आवाज बहुत आता है इधर, थोड़ा माइक स्लो करना है या फिर हम भी चिल्लाएगा. हाँ 1 मिनट, इधर तक समझा? नोट लिखो. नॉर्मल लॉस इज टू बी कंसिडर्ड इनडायरेक्टली in determination of cost. In determination of cost. आगे लिखो. Normal loss will reduce quantity and it will increase cost per average cost per unit. It will increase average cost per unit. सच बोलो, समझा क्या? पक्का? अभी सिर्फ एक हेडिंग लिख दो, बाद में वी विल वाइंड अप. एक इंक्लूड्स एक्सक्लूड याद रहेगा ना? मेथड्स मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं
कॉस्ट फॉर्मूले, याद रहेगा पक्का? एनी डाउट? मैनेजेबल? ये अपन नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। इतना बायट करके आना प्लीज, समझाना स्टैंडर्ड? पक्का? थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। कल ही है, मेजर पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विल गेट ओवर टुमारो ओनली। थैंक यू, बाय, टेक केयर।